Yes. So, welcome back for part two of today's financial healing with money Reiki to remove ancestral energy blocks. Okay. So, we have discussed in last session regarding what are financial energy blocks, what are ancestral energy blocks, and what is money Reiki. So, now we are going to do it in practical. So practically हम क्या करेंगे? First we'll call money reiki. So all of you get aligned. Okay? पहला हम alignment लाएंगे ताकि उस alignment में हम healing करेंगे. ठीक है? Close your eyes. Focus on your breathing. सांसों पर ध्यान दीजिए. और मेरी आवाज, आंखें बंद रखोगे, मेरी आवाज पर आप ध्यान दोगे. Listen to the vibration of my voice. I'm doing divine invocation. I thank Reiki for being here. I thank Mani Reiki for being here. I thank divine beings, all the angels, all the Mani Devas, God goddesses, spirit guides, ancestors, our spiritual teachers. Thank you all for being here. Oh God, make me your divine healing channel to flow your power through me, to heal myself, to heal my money energy blocks. I call Reiki, I call Money Reiki. Visualize एक बहुत beautiful divine light getting showered on you. You are completely bathed in this divine light. पूरा एक शुभ्र प्रकाश, white light आपके सर के ऊपर फ्लो हो रहा है. Your whole aura is filled in this divine light. पूरे आपका aura है वो इस divine light में फ्लो हो रहा है. मतलब ये divine light उसमें फ्लो हो रही है. And you are seeing yourself completely soaked in this divine light. This divine energy is flowing through your body. Crown chakra से लेकर रूट चक्रा में ये divine light flow हो रही है. Now, call Money Reiki. Just say I call Money Reiki and visualize. जैसे आप Money Reiki सोच रहे हो, एक beautiful golden light, column of golden light gets channelized on you from the universe above. It's entering your crown chakra, passing through all the chakras, flowing in your whole body, and it is also overflowing from your body, crown chakra, in whole aura. आपका पूरा aura is golden light से भर रहा है. Visualize yourself in beautiful white divine light with a glow of golden light. मतलब white light mixed with golden light. इतना सुंदर प्रकाश आपके सराउंडिंग में है, आपके अंदर है. आप एक गोल्डन एनर्जी स्टार की तरह चमक रहे हो. And now, in this energy alignment, you are going to think of your ancestors. आपके सारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, भले आपको उनका नाम भी पता नहीं है, इट्स ओके. मेरे पूर्वज, माय एंसेस्टर्स, सिर्फ इस नाम से उनको संबोधन करो. वो दुनिया में जहां भी है उनको पता चलेगा, बिकॉज आपकी आत्मा उनसे बात करेगी और सोल की वाइब्रेशन दूसरी सोल उसको पता चलता है. सोल अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज ऑफ सोल. दो सोल वाइब्रेशन को पहचानते हैं. सो हियर देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट लैंग्वेज. इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फील इन योर हार्ट. आपके हाथ से निकलने वाली वाइब्रेशन पर फोकस करो. पे ग्रैटिट्यूड टू ऑल योर एंसेस्टर्स. उन्होंने जो भी लाइफ जी है, सही गलत,
बहुत पॉजिटिव आपके लिए बहुत अबंडेंस क्रिएट किया है या कुछ नेगेटिव चीजें क्रिएट की है, ये मत एनालाइज करो। दे लिव देयर लाइफ विद देयर ऑल द कैपेसिटी, जो उनका पोटेंशियल था अच्छी चीज करने का या फैमिली के लिए कुछ करने का, ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए कुछ करने का, उन्होंने उनके बेस्ट ऑफ द एबिलिटी से वो चीज की है। अगर उनसे गलतियां हुई हैं तो उसको इग्नोर करो। फिलहाल आप उनके पॉजिटिव साइड को देखो। पे ग्रैटिट्यूड टू ऑल योर एंसेस्टर्स। उन्होंने इतना सिंसियरिटी के साथ आपके लिए कुछ अच्छा ही करके या छोड़ कर करके गए हैं। ओके, आपको उन्होंने ये एंसेस्टर लाइन दी है। ये आपका शरीर उसी एंसेस्टर लाइन में जन्म ले चुका है, राइट। आपको आपके पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स की वजह से पूरा शरीर मिला है, ये जिंदगी मिली है। सो वी हैव गॉट दिस लाइफ विद दिस बॉडी बिकॉज ऑफ देयर lineage। तो उनको धन्यवाद बोलो, दिल से धन्यवाद बोलो। Whatever they have done for you, for the generations and the work they have done in their lifetime, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं। सो दिल से आप उनको थैंक यू बोलो। डियर एंसेस्टर्स, with the bottom of heart, I pay gratitude to you. Thank you for everything. Thank you so much. I appreciate your efforts for me. Thank you, thank you, thank you. Now, on the piece of paper या डायरी, ओके, डायरी में लिखो, what is that one thing you like about your ancestors? आपके फैमिली की जो लीनिएज है, एंसेस्टर लाइन जो है, उसमें से कौन सी चीज आप पसंद करते हो, उसके लिए आप धन्यवाद पे करना चाहते हो अपने एंसेस्टर्स को। लिखो आपके डायरी में 1 पॉइंट, 2-3 अगर है तो 2-3 भी लिख सकते हो, बट एटलीस्ट 1 पॉइंट। फॉर वॉट थिंग विल यू पे ग्रेटिट्यूड टू देम? सो थिंक, आई गिव यू 2 मिनट्स टू थिंक और लिखो। ये एक्टिविटी करनी है बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ सेशन बाय पेइंग ग्रेटिट्यूड टू देम। लिखा? ओके, और आप ये ग्रुप में भी शेयर करोगे? हाँ, यू विल शेयर दिस वेरी मच ओपनली, बिकॉज जितना आप ओपनली चीजें बोलते हो ना, तो वो चीजें यूनिवर्स में डायरेक्टली कम्युनिकेट हो जाती है। मतलब यू आर ओपनिंग अप फॉर द अबंडेंस। इसीलिए हर चीज एडमिट करना है, कन्फेस करना है, ओपन अप करना है। सो जो आपने ग्रेटिट्यूड लिखा है, यू विल इवन शेयर इट इन द ग्रुप। आफ्टरवर्ड शेयर करो, अभी मत करो। हाँ हाँ, ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट टू सी दैट यू शेयर, type message that is the open heart gratitude you're paying to your ancestors, and universe is watching you, even they are watching you। हीलिंग के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ एंसेस्टर एनर्जी ब्लॉक्स को रिलीज कर रहे हैं, राइट। तो जितना आप एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड पे करोगे उनकी ब्लेसिंग लोगे, यू विल जनरेट गुड कर्मा, और उतने एंसेस्टर एनर्जी ब्लॉक डिसइंटीग्रेट करने के लिए एनर्जी जनरेट होगी। क्लियर? हाँ, सो ग्रेटिट्यूड यू आर गोइंग टू राइट। अगर आप और भी लिखना चाहते हो और भी लिख सकते हो, अपने एंसेस्टर्स के लिए लेटर लिखो, आज का असाइनमेंट। ओके, हाँ, और
सुदर्शन जी, ये पॉइंटर्स आप लिखो ताकि आप ग्रुप में भी ये शेयर करो व्हाट आई एम टेलिंग एज एन असाइनमेंट। एज एन असाइनमेंट आप एंसेस्टर्स को लेटर लिखोगे, लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, और ग्रुप में पूरा लेटर शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप अपने लिए लिखोगे। ओके, एंड ग्रुप में वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, ये ग्रुप में आप एक्टिविटी में के फॉर्म में शेयर करोगे। ओके, सो दैट एटलीस्ट अदर्स दोज आर नॉट देयर, ग्रुप में से बहुत सारे हैं, सब लोग इधर नहीं है, कुछ तो रीजन होगा वो अटेंड नहीं कर पाए, तो उनको आइडिया मिलेगी व्हाट दे हैव टू डू। ओके, तो असाइनमेंट ग्रुप में आना चाहिए, बी इंटरेक्टिव इन ग्रुप। फाइन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, पेइंग ग्रेटिट्यूड। अब दूसरा पॉइंट आप सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप एंसेस्ट्रल पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहते और रिलीज करना चाहते हो। एग्जैक्टली अपोजिट है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको आपके एंसेस्ट्रल लाइन से मिली है, आप पसंद नहीं करते, आपको वो एक कनेक्ट नहीं हो पाते। ओके, और उसकी वजह से आपके लाइफ में ट्रबल है, कुछ तो एक बात जो आप पसंद नहीं करते। ओके, आर यू गेटिंग इट? इवन राइट दैट पॉइंट, write that point in the diary. Any one point, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 2-3 पॉइंट है तो 2-3 लिखो, लेकिन एटलीस्ट 1 पॉइंट जो आपको रिलीज करना है, आप पसंद नहीं करते, आपको रिलीज करना है। ओके, मतलब पैटर्न्स, एंसेस्टर लाइंस के पैटर्न्स रिपीट होते हैं। अब वो पूरा अभी मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज वर्कशॉप बहुत लेंदी हो जाएगा, और हमें सिर्फ मनी एनर्जी से ही बातें कनेक्टेड रखनी है। अदरवाइज एंसेस्ट्रल लाइन से पैटर्न्स जो रिपीट होते हैं ना, बहुत तरीके के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, और उसी पैटर्न में हम अटक जाते हैं और अपनी ग्रोथ नहीं होती। सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट यू आर गोइंग टू ओनली फोकस ऑन व्हाट इज दैट रिलेटेड टू फाइनेंसेस। ऐसा कौन सा पैटर्न है, वो इमोशनल चीजें भी हो सकती है जो आपके फाइनेंसेस को रोक कर रखी है, और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके जॉब में ग्रोथ, आपके बिजनेस में ग्रोथ, आपके प्रमोशन में ग्रोथ ओके नहीं हो रही है, या अट्रैक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज नहीं हो रही है। ओके, सो समथिंग दैट इज हर्टिंग यू, कुछ तो स्ट्रगल्स आप गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, और आप वो रिलीज करना चाहते हैं, चाहे वो लोन हो, डेट्स हो, ओके, कोई भी स्ट्रगल्स हो, एनीथिंग जो नेगेटिव चीज आपको स्टकअप रखी है, एंसेस्ट्रल पैटर्न से रिपीट 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 हो रही है, यू हैव टू इंट्यूट, मतलब आप डीप मेडिटेशन भी कर सकते हो ये ध्यान में लाने के लिए, अरे कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। कभी कभी लोगों को पता ही नहीं चलता ये एंसेस्ट्रल पैटर्न रिपीट हो रहा है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ओके, तो बहुत अंदर झांक कर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक्सप्लोर करना होता है, और ये सब आप अंदर ही कर सकते हो। इसके लिए डीप मेडिटेशन और कम्युनिकेशन विद एंसेस्टर और पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना पड़ता है। ओके, बट फॉर नाउ इफ यू थिंक, क्लोज योर आईज और सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको मतलब एंसेस्टर लाइन से आई है, और ये चीज ने मुझे रोक कर रखा है। आपको समझ में आएगा, यू कैन गो विद इन गो विद इन एंड कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ, क्या ध्यान में आ रहा है। थिंक ऑफ योर ऑल द एंसेस्टर्स, थिंक ऑफ योर फैमिली, सब लीनिएज के बारे में सोचो। जो फैमिली और एंसेस्टर्स ने स्ट्रगल्स किया है लाइफ में, अगर आपको पता है, अपने स्टोरीज सुनी है, आपने खुद देखा है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, या मम्मी के साइड से, पापा के साइड से, ओके, जो भी ध्यान में आ रहा है उनके स्ट्रगल्स याद करो, क्या वो पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहे हैं? हाँ, मदर, ग्रैंड मदर के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, फादर, ग्रैंडफादर के पैटर्न्स भी रिपीट होते हैं। ओके, भले पेरेंट्स अभी है, मतलब दे आर देयर विथ यू, बट उनके लाइफ के स्ट्रगल्स भी अगर आपके लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, वो भी एक पैटर्न होता है। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कैरी किया होता है, आपने उनसे कैरी किया है। सोचो, यू विल फाइंड मेनी, बहुत। आज की रात अगर ध्यान में आता है, कल सुबह ध्यान में आता है, तो नोट करो। ओके, नोट इट, बिकॉज यही चीजें हमें रिलीज करनी है, इसी की हीलिंग करनी है। ओके, सो आप एक लेटर पर लिखोगे, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिखो, डियर एंसेस्टर्स,
लेटर लिखो, अभी रिलीज का पहले ग्रेटिट्यूड का लेटर लिखा, अब रिलीज का लेटर लिखना है। ओके, डियर एंसेस्टर्स, आई लविंगली रिलीज, आई लविंगली, हाँ, रिलीज से पैटर्न आया है, नेगेटिविटी आई है, तो उनका उन पर क्रोध नहीं करना है, उनका हेट नहीं करना है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको गलत साबित नहीं करना है। जो भी पैटर्न आया है इट्स ओके, हमें अभी हील करना है, रिलीज करना है। ओके, सो डियर एंसेस्टर्स, आई लविंगली रिलीज पेन्स, स्ट्रगल्स, डेट्स, जो भी डेट्स लोन्स अगर है तो उसका जिक्र भी करो, एंड अनरिजॉल्व एनर्जीज। अनरिजॉल्व मतलब ऐसे एनर्जीज, स्टकअप एनर्जीज होती है जिसका सोल्यूशन नहीं मिला है, वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है, और वो एनर्जी ब्लॉक बन जाते हैं और पैटर्न रिपीट होता है, और वो पास्ट लाइफ से भी आते हैं। लेकिन यहाँ हम एंसेस्टर्स से आए हुए पैटर्न्स को ही सोचेंगे। हाँ, हम एंसेस्टर से बात कर रहे हैं। सो अनरिजॉल्व एनर्जीज, ठीक है। Once again, I repeat, dear ancestors, I lovingly release pain, struggles, dates, and unresolved energies. May they dissolve into divine light. इसीलिए हमने divine light पहले कॉल किया है। May they dissolve, मे दे डिसॉल्व, हमने रिलीज किया ना। सी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को ये पता है। हम पहले चीज रिलीज करते हैं, उसके बाद उसको डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट करते हैं। रिलीज करने के बाद डिसॉल्व करो मतलब डिसइंटीग्रेट करो। ओके, सो मे दे डिसॉल्व इनटू डिवाइन लाइट। और डिसॉल्व कहाँ होता है, कैसे होता है? डिवाइन लाइट से ही होता है, आप नहीं कर सकते। इसीलिए हम डिवाइन एनर्जी को कॉल करते हैं, इसीलिए मनी रेकी को कॉल किया है, बिकॉज मनी रेकी इज गोइंग टू डिसॉल्व दोज एंसेस्ट्रल एनर्जी ब्लॉक्स, पेन, स्ट्रगल्स। आर यू गेटिंग इट क्लियर? हाँ, अब ये पेपर पर लिखोगे और इस पेपर को अच्छे से पढ़ो, पूरा माइंड से जो चीजें है ना, दिमाग में हेवीनेस, स्ट्रगल्स, टेंशंस, सब चीजें वो पूरा पेपर पर डालो। और भी कुछ एक दो वाक्य आप अपना लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि ये चीज मैं रिलीज करना चाहती हूँ। ओके, मैं मेरे सारे डेट्स, लोन्स, फाइनेंशियल मतलब डेट्स होते हैं वो रिलीज करना चाहती हूँ। ओके, मेरे एंसेस्टर लिनिएज से जो पैटर्न स्ट्रगल्स का कैरी किया है मैंने, मैं सब वो रिलीज करना चाहती हूँ। अपने भाषा में भी आप लिख सकते हो, जो भी इमोशनल पेन मैंने कैरी किया है, मैं सब इमोशनल पेन रिलीज करना चाहती हूँ। गॉट इट? रिलीज, रिलीज। तो ये रिलीज करने के लिए पहले लिखो, पूरे दिमाग और दिल से पेपर पर उतारो एनर्जी के फॉर्म में। और अभी आपको होमवर्क है, ओके, अभी मतलब तुरंत मत करना, मेरा सेशन खत्म होने के बाद क्या करोगे, बर्न इट। हाँ, एक चिमटा मतलब कुछ टोंग ले लो, पेपर को बर्न करो। हाँ, पेपर को बर्न करो, टेक बी केयरफुल, प्लेट रखो नीचे, एंड आफ्टर बर्निंग जो ऐश आती है ना, वो ऐश कमोड में जाकर फ्लश करना है, उसमें डालो और फ्लश करो। ओके, थ्रो इट इन द commode and flush it out and release even ash and let it go. So this is the activity you are going to actually do and it is very powerful. लगता है ये कागज पर लिखकर कुछ हो सकता है। जब मैंने मेरे टीचर से पहली बार 2019 में सीखा तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि ये लिखकर जलाने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। मैंने इनोसेंटली फॉलो किया, बिकॉज कोई एक्सपीरियंस पर्सन बोल रहा है अपने एक्सपीरियंस से और उसको भी उसके बाकी के स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, उसने भी अपने टीचर से सीखा है, पूरी वर्ल्ड में लाखों लोग ये फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी करना है और रिलीज करना है। सोल्यूशन मिल जाए ये इंपॉर्टेंट है, वो लॉजिकल थिंकिंग मत करो। गॉट इट? डोंट गो फॉर लॉजिक, थिंक ऑफ सोल्यूशन। तो ये बर्न करके ऐश को थ्रो करना है कहाँ, कमोड में। रिलीज एंड लेट गो, फाइन। उसके बाद आप शांत बैठकर मेडिटेट करोगे। हाँ, रिलीज करने के बाद 5 मिनट शांत बैठकर मेडिटेट करोगे और महसूस करोगे कितना हल्का फील कर रहे हो। इतनी सारी चीजें दिमाग में, यू राइट एवरीथिंग। हाँ, जो हर्ट कर रहा है ना एंसेस्टर से, ग्रैंड पेरेंट्स से, कोई झगड़ा है, कुछ एनीथिंग, ओके, अनबन हुई थी, सब लिखो और जला डालो। एंड देन फॉर 5-10 मिनट्स शांत बैठो और पूरा हल्का कितना महसूस होता है ये फील करो। थोड़ा बहुत तो हल्का महसूस होता है। अगर लगता है नहीं कल वापस यही करना है,
एंड लिटरली आई विल टेल यू, माय टीचर टोल्ड मी टू डू 21 डेज। ये राइटिंग वर्क और जलाने का काम ना, कोई भी इमोशनल पेन कुछ भी है, एवरीथिंग यू कैन पुट। अभी तो मैंने सिर्फ एंसेस्टर्स के बारे में बोला है, ये तो पूरे लाइफ के हर एरिया के लिए कर सकते हैं। ओके, डू दिस एक्टिविटी रिपीटेडली 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 एवरी डे, एटलीस्ट टिल न्यू मून डे करो। हाँ, आज वेनसडे है, संडे तक तो करो, पितृपक्ष चालू है, ठीक है। एंड यू विल सी डे बाय डे एनर्जी हल्की हो जाएगी, लाइट फील करोगे आप, और हीलिंग हो जाएगी, आपका इमोशनल हीलिंग और अंदर की एनर्जी जो दबी हुई है ना वो बाहर निकलेगी। बिकॉज दैट एनर्जी ब्लॉक रिलीज होने के बाद ही एक्चुअली स्पेस मिलती है अपनी बॉडी में टू एब्जॉर्ब न्यू थिंग्स, टू रिसीव न्यू अपॉर्चुनिटीज। मूव ऑन करने के लिए स्पेस तो होना चाहिए ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए, और अबंडेंस और मनी एनर्जी पूरी अपने एनर्जी में समा जाने के लिए जगह तो चाहिए। ये जगह करो, दिस इज द वे, विद दिस एक्टिविटी वी मेक दैट रूम स्पेस इन आवर ऑरा टू एब्सॉर्ब न्यू फ्रेश एनर्जी। आर यू गेटिंग इट? हाँ, सो एवरीबडी विल डू। हाँ, और ये एक्टिविटी करने के बाद आप 10 मिनट का मेडिटेशन करोगे और आप कैसा महसूस करते हो ग्रुप में 1 और 2 लाइंस में आप शेयर करोगे। हाँ, तो सेकंड चीज शेयर करोगे। फर्स्ट चीज क्या है? वन थिंग विच यू लाइक अबाउट योर एंसेस्टर्स, ये शेयर करना है। और ये रिलीज की एक्टिविटी करने के बाद आप जो महसूस करोगे, कुछ भी थॉट आएगा, हल्का महसूस होगा, थोड़ा बेटर फील होगा। व्हाट आर योर फीलिंग्स, व्हाट आर योर इमोशंस? हाँ, भले रोने को आया तो भी चलेगा, बिकॉज स्टॉप इमोशंस होते हैं ना दबे हुए, हम क्लेंसिंग के लिए निकालते हैं ना, तो रोना भी आ सकता है, वो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो हीलिंग। ओके, इफ यू फील टू क्राई ड्यूरिंग हीलिंग सेशन या ये एक्टिविटी के टाइम पर, इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हीलिंग, ठीक है। सो क्लियर टू यू? दो पॉइंटर्स ग्रुप में आपके मैसेजेस आना चाहिए, बिकॉज देर एक्चुअली यू आर ओपनिंग अप, शेयरिंग विथ योर all the divine powers, and their healing universe is acknowledging your efforts also। ये acknowledgement बहुत important है। ओके, हाँ, सो नाउ आई होप यू हैव रिटर्न। और पता चला एक्टिविटी क्या है? अगर मैं अभी बोलूं बर्न करो तो टाइम जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ सेशन खत्म होने के बाद 2-5 मिनट में ही आपको बर्न करना है, 10 मिनट साइलेंस मेंटेन करना है, और ग्रुप में मैसेज डालना है। आई एम देयर एक्टिव इन द ग्रुप, मैं सबके मैसेज का वेट करूंगी। ओके, आई वुड लाइक टू सी 13 मैसेजेस इन द ग्रुप। क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। Now, we are going to communicate with our ancestors। ओके, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक है, और सुपर पावरफुल टेक्निक है। गॉट इट? इजी, सिंपल बट सुपर पावरफुल। इसका नाम है होपोनोपोनो टेक्निक। ओके, ये पूरी जगह विख्यात टेक्निक है, हवाई टेक्निक है, और इसका हिस्ट्री भी बहुत पावरफुल है। अब मैं हिस्ट्री की बात नहीं करूंगी, स्टोरी बाद में बताऊंगी, अभी हम एक्चुअली एक्टिविटी करेंगे। क्लोज योर आईज, स्टे कनेक्टेड इन द ग्रुप, बिकॉज बहुत कुछ शेयर करने के लिए है। मैं तो बोनस सेशन आगे भी दे सकती हूँ, तो डोंट थिंक कि कल का सेशन खत्म हुआ मतलब खत्म हुआ, नहीं, स्टे कनेक्टेड, आई विल बी गिविंग फ्यू मोर बोनस सेशंस आल्सो। शांत हो जाओ, सांसों पर फोकस करो, जो जो मैंने बोला है उस एनर्जी वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब करो, कनेक्ट विद द एनर्जी। Bring your awareness on your heart chakra, center of the chest। सेंटर ऑफ द चेस्ट पर अवेयरनेस रखो। दिल की धड़कन की आवाज सुनो। Focus on the heartbeat and listen to the sound of your heartbeat। Be grateful in the heart। हर एक हार्ट बीट में आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का जाप करो फॉर फ्यू मिनट्स। दिल की धड़कन के साथ थैंक यू का जाप हमेशा होना चाहिए। यू सी, मैजिकली लाइफ शिफ्ट हो जाती है।
Now, visualize your heart chakra is shining with a beautiful divine light. Golden divine light में वो shine हो रहा है with Reiki and Mani Reiki. आपके सराउंडिंग में ये गोल्डन वाइट डिवाइन लाइट है. एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ एज द सोल. आप एक ऊर्जा हो, आत्मा हो, जिसके पास ये शरीर है. बी ग्रेटफुल टू दिस बॉडी. इसकी वजह से आप पृथ्वी पर हो एज ए ह्यूमन बीइंग. नाउ you as the soul, you will communicate with the souls of your ancestors. भले आपको उनके चेहरा मालूम नहीं है, नाम भी मालूम नहीं है, इट्स ओके. इमेजिन करो आपके सामने ग्रुप ऑफ पीपल, आपके एंसेस्टर्स बैठे हुए हैं, जो भी गुजर चुके हैं. आप उनको देख रहे हो. उनके अगर चेहरे नाम मालूम है, क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो. नहीं तो जस्ट एक फिगर, कोई तो बैठा है, चेहरा क्लियर नहीं दिखता है, इट्स ओके. नाम मालूम नहीं है, इट्स ओके. मेरे पूर्वज, माय एंसेस्टर्स, ऐसा सोचकर ग्रुप ऑफ एंसेस्टर्स बैठे हैं और आप उनके सामने हो. और आप उनसे अब कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे. यू एज अ सोल, यू आर नाउ टॉकिंग टू द सोल्स ऑफ योर एंसेस्टर्स. पूरे दिल से उनको पहला ग्रेटिट्यूड पे करो. थैंक यू फॉर शोइंग अप. अभी आपके सामने वो है, उसके लिए उनको थैंक यू बोलिए. थैंक यू फॉर शोइंग अप. और बहुत प्यार से उनको देखो, बहुत प्यार से देखो. और उनको बोल दो, आई एम सॉरी. मुझे माफ करना. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. अगर मुझसे कोई गलती हुई है इस जन्म में या पिछले जन्मों में, मैंने आपको हर्ट किया है, किसी भी तरह मेरी वजह से आपका अवमान हुआ है, इंसल्ट हुआ है, कोई भी तकलीफ हुई है, शब्दों से, कृति से, मतलब वर्ड्स और एक्शन से, आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आपने इतना सारा कष्ट किया लेकिन हमने एक्नॉलेज नहीं किया, उसके लिए भी सॉरी. डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी वजह से अगर आपको कोई पेन मिला है, दुख मिला है, उसके लिए आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. मुझे माफ कीजिए. आप सबसे बात कर रहे हो. आपने अपने जिंदगी में जो भी किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं अपने हिसाब से. यू हैव गिवन द बेस्ट. आई अप्रिशिएट इट. और ये कष्ट करते वक्त जो आपको तकलीफ हुई है, आप स्ट्रगल से गुजर गए हो, पेन से गुजर गए हो, और वो पेन, वो स्ट्रगल आपके अंदर रह गया है, उसके लिए आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आपके कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज अगर है, आपकी अतृप्त इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं और हम अभी तक पूरा नहीं कर सके, आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आपके संस्कार फॉलो करने में हमारी अगर गलती हुई है और उसकी वजह से आपको दुख हुआ है, आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. जो भी फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल पेन, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपने गो थ्रू किया है अपनी जिंदगी में, आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. फॉरगिव मी फॉर दैट. विजुअलाइज करो, आप इतना दिल से उनको इतना धन्यवाद दे रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, गलती की माफी मांग रहे हो. दे आर बिकमिंग हैप्पी. दे आर बिकमिंग सेटिस्फाइड. वो खुश हो रहे हैं. उनको दिल को सुकून मिल रहा है. उनकी मतलब जो एक एनर्जी है, उसको एक राहत मिल रही है. एंड यू सी दे आर हैप्पी एंड दे आर
forgiving you. They are forgiving you. आप भी उनको माफ कर दो, वो भी आपको माफ कर रहे हैं. You also say, I forgive you. I'm sorry, please forgive me. I also forgive you. और वो खुश हो रहे हैं, वो आपको माफ कर रहे हैं. आप विजुअलाइज करो. और डिवाइन ये देख रही है, डिवाइन भी आपको माफ कर रही है बिकॉज आपने दिल से माफी मांगी है. डिवाइन इज वॉचिंग यू. डिवाइन इज ऑल्सो फॉरगिविंग यू. अब सबको थैंक यू बोलो. आई थैंक यू. आई थैंक यू ऑल माई एंसेस्टर्स. आई थैंक यू डिवाइन. आई थैंक यू. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. आपने हमारे लिए जो जो किया उसके लिए थैंक यू. हमारे लिए जो चीज छोड़ गए हैं आप, उसके लिए थैंक यू. थैंक यू फॉर योर लव. थैंक यू सो मच फॉर फॉरगिविंग मी. आई लव यू. सबको आई लव यू बोलो. आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. आप इतना प्यार भरे दिल से उनको आई लव यू बोल रहे हैं, वो पूरा खुश हो रहे हैं. दे आर बिकमिंग हैप्पी. शायद जब जब वो थे तब आपको मौका नहीं मिला हो आई लव यू बोलने का. अभी बोलो आई लव यू. नाम लेकर बोलना चाहते हो तो नाम लेकर भी बोलो आई लव यू. वापस 3 बार रिपीट करो. विजुअलाइज करो ये लव एनर्जी बॉन्ड सबको हील कर रहा है, उनको भी हील कर रहा है, आपको भी हील कर रहा है. Repeat 3 more times. I'm sorry. Please forgive me. My dear ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. My dear ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. My dear ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. विजुअलाइज करो आपके हार्ट से जो एक लव वाइब्रेशन जा रही है, पूरी उनमें मतलब स्प्रेड हो रही है, फैल रही है. All ancestors are in this love energy and they are getting healed. They're becoming happy. And they are blessing you. They are blessing you. They are getting released. वो एक सुकून से निकल जा रहे हैं, मतलब you can see they are just dispersing, vanish हो रहे हैं. धीरे धीरे इथर में vanish हो रहे हैं. You're blessing them, they are blessing you, you're giving love to them, they are also happy, giving love to you. पूरी healing हो रही है. And the divine energy which is flowing through you is going to them and divine energy is healing them too. आपकी भी हीलिंग हो रही है, उनकी भी हीलिंग हो रही है, और आप दोनों के बीच में जो एनर्जी बॉन्ड है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, हील हो रहा है, एंड दे आर जस्ट मर्जिंग इन द ईथर. यूनिवर्स में वो मर्ज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं. And all the energy blocks connected with your ancestors are getting released and disintegrated, disintegrated, disintegrated. Visualize yourself shining bright and beautiful in gold and white aura. एक डिवाइन वाइट एनर्जी के साथ गोल्डन एनर्जी मिक्स है, इतना ब्यूटीफुल लाइट आपके सराउंडिंग में है. And you are feeling so light and so happy. Just relax. पूरा रिलैक्स फील करो. सोक इन दिस एनर्जी, सोक इन दिस ब्यूटिफुल एनर्जी. एब्सॉर्ब इट. आपके सांसों में भर लो. ये पूरी एनर्जी आपके सांसों में भर लो. आपके बदन में फैल रही है, आपके सारे चक्रास में, ऑरा में ये फैल रही है. इट्स फ्लोइंग इन योर चक्रास एंड ऑरा. इट्स फ्लोइंग इन योर सोल, mind, body. You're getting healed. All the energy blocks are released and disintegrated, disintegrated, disintegrated. Divine blessings and healing to everyone. Be open to receive. All the people connected on this call in this moment. Divine healing and blessing to everyone. Thank the divine, thank the universe, thank Reiki, thank Money Reiki, thank all the ancestors. Thank you for the healing. And thank you all for connecting on this call. Thank you so much.
अगर आपको इस स्टेट में रहना है थोड़े टाइम के लिए, आप रह सकते हो। होपोनोपोनो और थोड़ा रिपीट करना है, कर सकते हो। एंड जब आप उठोगे तो वो बर्निंग की एक्सरसाइज करना है और ऐश को वॉशरूम में थ्रो करना है। वापस आकर 5 मिनट शांत बैठना है, ओनली साइलेंस। ओके, हल्का महसूस करो, रिलैक्स महसूस करो। और ग्रुप में 2 मैसेजेस हर एक के साइड से आएगा। एक ग्रेटिट्यूड का, जो चीज आप एंसेस्टर्स की पसंद करते हो, और जो चीज आपको रिलीज करना है, जो हर्ट, स्ट्रगल, पेन, डेट्स जो भी है रिलीज करना है, जो ऑलरेडी लिखा है आपने और रिलीज किया है, उसी को टाइप करो, ताकि ओपन अप करके वो डिसइंटीग्रेट करो। ठीक है? हाँ, आई एम देयर इन द ग्रुप, आई विल मॉनिटर द ग्रुप, आई विल सी एवरीवन्स मैसेज। ठीक है? किसी को कुछ बोलना है तो आप शेयरिंग कर सकते हो। लिंक खत्म हो जाती है तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके? हाँ, ग्रुप में हम इंटरेक्ट करेंगे, बी एक्टिव इन द ग्रुप। और कल के सेशन के लिए आप अगर चाहते हो अपने और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को इनवाइट करना है, बिंदास करो। ओके, बिकॉज टुमारो सेशन विल बी समथिंग डीपर। हाँ, आई विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, और बहुत एक अच्छा हीलिंग मेडिटेशन भी दे दूंगी। ठीक है? मनी रे की ब्लेसिंग्स भी दे दूंगी। सो यू कैन इनवाइट मोर पीपल, बिकॉज ये चीज बहुत पावरफुल है। इतना कम्युनिकेशन जो होता है ना, और आप कम्युनिकेशन स्ट्रांग करोगे ना, एवरीडे ये एक्सरसाइज करोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे बहुत इंप्रूवमेंट होती है लाइफ में। ओके? एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अपने एंसेस्टर्स के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना, कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलनी। ओके? नो नेगेटिव नहीं बोलना है तो कुछ मत बोलो, अप्रिशिएट करना है तो अप्रिशिएट करो। एंड डोंट टॉक एनी अनप्लेजेंट थिंग, उनको दोष मत देना, उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ठीक है? मन में सिर्फ होपोनोपोनो करते रहना, इंक्रीज द होपोनोपोनो प्रेयर। एक माला भी सोते वक्त कर सकते हो, 108 times chanting of I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you to the ancestors. Please give your feedback messages in the group. Okay, I'm there in the group and I'm watching everyone. Thank you all. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Yes.